Good evening, sir. Yes, good evening, beta. Good evening, everyone. को वॉइस आ रही है बेटा? गुड इवनिंग बेटा. Yes, sir. हाँ जी बेटा. Let's start the topic बेटा. Chapter number 7, 8 और 9, 3 units total. 3 chapters. Chapter number 7, 8 और 9, Unit 3 Macroeconomics बेटा. अभी तक जितना भी हमने किया है चैप्टर के अकॉर्डिंग बेटा, एक बार शॉर्ट में क्विक रिवीजन. First of all, beta, we start the topic beta aggregate demand. This chapter is related to the aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand means total demand of a nation, country की economy की total demand by all the sector of the economy. All the sector of economy means producing sector, household sector, government sector and rest of the world. But in our course, हमारे कोर्स में कौन सी सेक्टर इकोनॉमी है? Only two sector इकोनॉमी बेटा. हमने कोर्स के अकॉर्डिंग ओनली एग्रीगेट डिमांड को टू सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमने गो थ्रू करना है. इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रीड आउट करना है. मोस्ट AD is equal to C plus I from two sector economy point of view model के according at the formula of aggregate demand is equal to C plus I. तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हुए हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे बेटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड. दिस इज नोन एज C plus I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस टॉपिक को एज अ होल. What are the various components of aggregate demand? Oblesh. Two, sir. What are the various components of aggregate demand? Household private consumption expenditure, government consumption expenditure, investment और foreign trade. मतलब X minus M. That means to say that beta, the components of aggregate demand from overall four sector economy point of view, consumption. Number 2 point is known as a investment. Point number 3 is known as a government expenditure. Point number 4 is known as a net export. The formula net export is equal to export minus import. Overall components of aggregate demand. Next concept is what is aggregate demand schedule. What is aggregate demand schedule? What is aggregate demand schedule? Dia. Schedule means tabular. Aggregate demand schedule refers to the tabular representation of consumption and investment. Tabular representation of consumption and investment. जो कि the formula of AD from two sector economy model point of view, AD का formula C plus I है. तो यही इसका schedule है. That schedule जो show the relationship between consumption and investment corresponding to different level of income. That means income के different level पे आप कितनी consumption करते हैं, कितनी investment करते हैं. That is known as the aggregate demand schedule or aggregate demand table as a whole. Now फ्रॉम दिस टेबल, अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले इस टेबल के अकॉर्डिंग डिस्कशन होना चाहिए एट जीरो इनकम लेवल सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर. जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ हमारी कंजम्पशन होती ही होती है. दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन. इस टाइप की कंजम्पशन का नेम क्या होता है हमारा? ऑटोनोमस कंजम्पशन. एंड ऑटोनोमस का सिंबल हम जो यूज कर रहे हैं इट इज कॉल्ड द बार. So at zero level of income, some minimum level of consumption is always there. This is called the our past savings. That is known as the autonomous consumption. जिसका income से कोई relationship नहीं है, zero income के सामने. Second favorite point is known as a break even point. Break even point. What is break even point? Very good. Break even point. Right, beta. Break even point is that point where income is equal to consumption. अभी तक जितना भी हमने 3-4 क्लासेस में किया है उसका शॉर्ट में क्योंकि रिवीजन टॉपिक चल रहा है. Saving is zero. Right, beta. Break even point is that point where income is equal to consumption or where saving is equal to zero. This point is known as the break even point. Macroeconomics break even point जो बोर्ड के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है विद डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारा पार्ट ये बनेगा बेटा. बट यहाँ से सीख के जाओगे टेबल, आपको नॉलेज होगी पहले से ही बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो बहुत इजी रहेगा हमारा टॉपिक. हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट में इनकम कितनी है बेटा? इनकम इज 100 और कंजम्पशन इज 100.
So at 100. that point, income is equal to consumption, saving is equal to 0. This is known as the break-even point, macroeconomics break-even point. Now the next favorite point is that one, beta. What is point of equilibrium? पॉइंट है वो होगा ना Tushar, what, beta? सर मैं कह Yes, रहा हूँ कि जो Tushar. पर्टिकुलर सर ये मैं कह रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो होगा ना इस तरह से कि 100 इक्वल टू 100 हाँ, तो particular, और में तो डिफरेंट है बिल्कुल। हाँ जी, पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट बेटा, होल टेबल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। जिस पॉइंट पे इनकम कंजम्पशन के इक्वल है और जिस पॉइंट पे सेविंग आपकी 0 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर लेवल जो है बेटा, दिस पॉइंट बेटा, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिस्कशन है बेटा, एज अ होल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दो फेवरेट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। So what is point of equilibrium क्या होता है बेटा? At that point where y is equal to AD, जिस point पे income, at that point where income is equal to aggregate demand, और income का अदर नेम क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या है? AS। लास्ट क्लास में हमने किया था, इनकम का अदर कॉन्सेप्ट क्या किया था? एरिगेट सप्लाई। Aggregate इनकम supply. की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं बेटा, एरिगेट सप्लाई इज इक्वल टू एरिगेट डिमांड। एट दैट पॉइंट वेयर AS इज इक्वल टू AD, at that point where AS is equal to AD, aggregate demand is equal to aggregate supply, जिस पॉइंट पे एरिगेट डिमांड और एरिगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट 5 मार्क्स से पहले ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था। अब टर्म 2 के अकॉर्डिंग आपका डिवाइड जो हो गया टॉपिक बेटा, उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स, 3 मार्क्स किसी भी पॉइंट में कॉन्सेप्ट आ सकता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट बेटा वेयर AS is equal to AD, and the second approach of point of equilibrium is that where second approach saving and investment beta, at that point beta where y is equal to c, जिस point पे income जिस at that point where AD is equal to AS, जिस point पे AS AD के equal होगा, सेम उसी point के अंदर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी 100% इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, S इक्वल टू I, उस पॉइंट पे पॉइंट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टेबल आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग बनाया है। 100% कोई भी टेबल चेक कर लो, कहीं का भी टेबल लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इजीएस्ट टेबल है जो सामने हमारे बना हुआ है प्रॉपर वे में। तो एट दैट पॉइंट वेयर AS इज इक्वल टू AD और वेयर S इज इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अभी तक इस टेबल के अकॉर्डिंग यहां तक हमारा प्रॉपर डिस्कशन हो चुकी थी। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेबल आपके सामने है, सब टेबल ग्रुप में कोई डालना चाहिए टेबल बेटा सेंड कर दो। At that point beta where AS is equal to AD, S is equal to I, point of equilibrium, Y is equal to C, break even point। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू क्या है इस टेबल के अकॉर्डिंग? 40 करोड़ रुपीज इन करोड़ में पूरा टेबल हमारा डिस्क्राइब है। कंट्री के अकॉर्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा टेबल है, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग बेटा। तो जीरो इनकम के सामने जो हमारी कंजम्पशन है, इट इज द 40 करोड़, इट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब अगर एग्जाम में आ जाए बेटा, व्हाट इज ऑटोनॉमस एरिगेट डिमांड, व्हाट इज ऑटोनॉमस एरिगेट एक्सपेंडिचर? एरिगेट डिमांड का नेम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ एरिगेट डिमांड? एरिगेट एक्सपेंडिचर। द अदर नेम ऑफ एरिगेट डिमांड इज नोन एज द, यस, एरिगेट डिमांड का अदर नेम क्या होता है? एरिगेट एक्सपेंडिचर, AE। AD का अदर नेम क्या है? AE। दैट मींस AD जो है बेटा आपकी, AD का ही अदर नेम होता है AE, एरिगेट एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट इज, पेपर में आ जाए बेटा, व्हाट इज ऑटोनॉमस एरिगेट एक्सपेंडिचर? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑटोनॉमस एरिगेट एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, जिसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑटोनॉमस एरिगेट Income is एक्सपेंडिचर, zero. और वी कैन से दैट ऑटोनॉमस एरिगेट डिमांड, AD का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C plus AD का I. फॉर्मूला होता है C प्लस I। I तो ऑलवेज ऑटोनॉमस है, I तो थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट हम ऑटोनॉमस ही यूज कर रहे हैं बेटा। बट अगर हमें पूछा गया ऑटोनॉमस एरिगेट डिमांड, अगर हमें ये डिस्कशन किया गया है, ऑटोनॉमस एरिगेट डिमांड के बारे में बताया गया है, दैट मींस कंजम्पशन भी ऑटोनॉमस लोगे और इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस लोगे बेटा, वो होगा ऑटोनॉमस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका ऑटोनॉमस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितनी है वैल्यू? 60। दैट मींस जीरो इनकम के सामने जो आपकी कंजम्पशन थी, उसका क्या नाम हुआ? ऑटोनॉमस Autonomous एग्रीगेट consumption. एक्सपेंडिचर बेटा। यस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं, ऑटोनॉमस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। सो एट जीरो इनकम के सामने जो आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, दैट मींस AD जो है, इट इज कॉल्ड द AD बार, और हम कह सकते हैं उसे AE बार,
और हम लिख सकते हैं सी बार प्लस आई बार। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। एक एक लाइन लिखते जाओ जो जीरो लेवल इनकम के सामने जो हमारी एरिगेट डिमांड गिवन है, आप टेबल में चेक कर सकते हो, मैंने उसके ऊपर एडी बार यूज किया है 60 करोड़। एट जीरो इनकम के सामने जो थी बेटा हमारी लाइन, दिस वन, सीधा ग्रुप में डाल दो इस पेज को बेटा, ऐसे सेम। सो एट जीरो न्यू क्वाइंट न्यूमेरिकल के लिए 100% आएगा, ये लाइन आ सकती है न्यूमेरिकल के अंदर। इफ ऑटोनॉमस, पेपर में लिखा होगा इफ ऑटोनॉमस एरिगेट एक्सपेंडिचर इज 100 करोड़ या 60 करोड़ वट एवर। अब एक स्टूडेंट ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर को लिख रहा है सी प्लस आई, टॉपर लिख रहा है सी बार प्लस आई बार, तो आंसर में ही चेंज आ जाएगा सारा न्यूमेरिकल्स में भी। सो ऑटोनॉमस एरिगेट एक्सपेंडिचर मींस एडी बार, दैट मींस सी बार प्लस आई बार। सी भी बार वाला यूज करना है और आई भी बार वाला यूज करना है। सी बार तो जो होता है वो सिर्फ जीरो इनकम के सामने तो सी बार होता है, बाकी थ्रू आउट तो सी बार होता ही नहीं कहीं बेटा एज अ होल वाइज। सो दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बेटा। इज इट क्लियर सबको बेटा टॉपिक? Yes, यस, sir. सबको युक्ति क्लियर है बेटा? तुषार, दिशा, Yes, sir. नीरज, चाइना बेटा, प्रवीण, पारुल, पार्थ बेटा, मान्या क्लियर, लवन्या, लक्ष्य, Yes, sir. ईश, गुनप्रीत क्लियर बेटा, गौरिका, चाहत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, ऐशप्रीत, अर्पित, Yes, sir. आद्या, आयुष क्लियर कॉन्सेप्ट बेटा? Yes. सो आप चेक कर सकते हो बेटा, ये सिंगल टेबल जो है हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। मींस मेरे हिसाब से तो ये सिंगल टेबल हमारा चैप्टर ही एंड कर देगा। जिस स्टूडेंट को इस सिंगल एक टेबल समझ आ गया बेटा, तो चैप्टर ही पूरा इसके आसपास ही रोटेट होना है। आगे जाके आपने क्या पढ़ना है? ब्रेक इवन पॉइंट। आगे आप क्या पढ़ोगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 334 पेज के। ऑटोनॉमस एरिगेट डिमांड, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने गो थ्रू करना होगा, तो होल टेबल इसी के बारे में हर कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब है बेटा। सो नाउ आई थिंक सो यही तो हुआ था लास्ट क्लास में टॉपिक। एरिगेट सप्लाई भी डिस्कशन कर ली थी हमने। एरिगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। एरिगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। यहाँ नेशनल इनकम के लिए कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी। जैसे हम नेशनल इनकम चैप्टर करते हैं तो नेशनल इनकम मींस क्या होता है? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो वर्ड सुन के थोड़ा सा टेंशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ नेशनल इनकम एक सिंपल सा प्यारा सा वर्ड है, उसका नाम क्या है? वाई, सिंपल। तो एरिगेट सप्लाई जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विस को सेल आउट करने के लिए इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एरिगेट सप्लाई है। एरिगेट सप्लाई जो है बेटा इज ऑलवेज एरिगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? ऑलवेज इक्वल टू वाई के हमारा इक्वल होगी। दैट मींस नेशनल इनकम के इक्वल है बेटा, National क्योंकि income. एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई मींस जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है उस प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, सच एज लैंड, सच एज लेबर, सच एज कैपिटल, सच एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये सब यूज कर रहे हैं, लैंड को उसके बदले में कोई अगर पर्सन लैंड दे रहा है उसके बदले में क्या मिलेगा? रेंट। तो Rent. रेंट उसकी क्या है बेटा? इनकम, दिस वन। कोई पर्सन अगर लेबर के बेसिस पे काम कर रहा है बेटा, तो लेबर को उसके बदले में क्या मिलता है? वेजेस। तो Wages. वेजेस उसकी क्या है? इनकम। कोई पर्सन अगर कैपिटल लगा रहा है किसी बिजनेस के अंदर, पैसा दे रहा है, तो उसके मिलेगा क्या? रेट ऑफ Interest. इंटरेस्ट। क्या उसकी? इनकम, इंटरेस्ट। कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहा है, तो उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। Profit. प्रॉफिट उसके लिए क्या है बेटा? उसकी इनकम। एरिगेट सप्लाई में जितने भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, दे ऑल जनरेट द इनकम। दैट्स व्हाई एरिगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। सो द फॉर्मूला ऑफ y इज इक्वल टू c प्लस s। अगर y का फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? c प्लस s। तो s का फॉर्मूला भी क्या बन गया? c प्लस s। C plus S. सिंपल। तो आगे अगर as के बारे में कुछ पूछा जाए तो फॉर्मूला लिख के आंसर न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, c प्लस s करके। y का फॉर्मूला पूछा जाए तो c प्लस s। सिंपल सोबर फॉर्मूला है बेटा हमारा। नाउ y की लाइन भी हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्क्राइब कर ही ली थी। इनकम कर्व जो ऑलवेज लाइन बनती है, कैसे बनेगी इनकम की लाइन? ऑलवेज 45 डिग्री लाइन। इनकम कर्व जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इट इज ऑलवेज 45 डिग्री लाइन होगी। y इज इक्वल टू ऑलवेज 45 डिग्री लाइन। इनकम कर्व हमेशा 45 डिग्री लाइन ही प्लॉट होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इनकम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं बेटा? एक्स एक्सिस पे। Axis. एंड एरिगेट सप्लाई इज टेकन ऑन द वाई Y एक्सिस। axis. एक को एक्सिस पे दिखा रहे हो, एक को वाई एक्सिस पे दिखा रहे हो, एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर इक्वल हैं। y इज इक्वल टू c प्लस s, as इज इक्वल टू c प्लस s। दोनों की वैल्यू सेम है, 0 0 50 50 100 100 150 150 200 200। तो इट्स आइडेंटिकल।
इट्स आइडेंटिकल दैट y इज ऑलवेज इक्वल टू 45 डिग्री बनेगा, 90 का हाफ ही बनेगा, तो परपेंडिकुलर रिकॉल का करें ना हाफ। जो हमने इस चीज में किया है। बिल्कुल सर, अभी तक रिकॉल ही कर रहे हैं, हर क्लास में रिकॉल ही होगा, बार बार चैप्टर ऐसी फॉर्म में हमने रन करना है बेटा। पहला चैप्टर जो रिवीजन में भी उठा रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है हमारा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एरिगेट सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ एरिगेट सप्लाई। अब एक बच्चा टेंशन ले रहा है, यार कंपोनेंट्स क्या होंगे एरिगेट सप्लाई के? एरिगेट सप्लाई मींस एएस, एएस का फॉर्मूला C plus Consumption plus savings. कंपोनेंट्स क्या होगा? CNS, consumption and savings. तो consumption and saving are known as the components of aggregate supply है। consumption is a main component of income होता है। consumption never be negative, never be zero, zero भी नहीं होगी, negative भी नहीं जाएगी। some minimum level of consumption is always there even your income is permit or not। आपकी इनकम आपको परमिट करे या ना करे, some basic consumption तो ऑलवेज होगी, क्योंकि एक सिंपल स्लोगन, एक डायलॉग, सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, सिंपल। तो दैट्स व्हाई कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होगी। और इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशनशिप होता है? ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना पता है नमन भर भर के लिखते जाना, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सोवर टॉपिक है बेटा। देन उसके बाद सेविंग्स। सेविंग्स अगर आप टेबल चेक करो सेविंग का, तो टेबल के अकॉर्डिंग सेविंग जो है बेटा मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो और मे बी पॉजिटिव। सेविंग के 3 फीचर्स बेटा, सेविंग कैरेक्टर्स ऑफ सेविंग। सेविंग मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो और मे बी पॉजिटिव। सेविंग नेगेटिव कब हो सकती है बेटा? सेविंग इज नेगेटिव व्हेन Consumption is more. इनकम। आपकी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से बेटा, इसका मतलब हम पास सेविंग्स को यूज कर रहे होंगे, इनकम तो है नहीं हमारी, अलाउ कर नहीं रही इतनी ज्यादा, तो सेविंग इज नेगेटिव आ गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने, सेविंग इज इक्वल टू जीरो। व्हेन वी कैन सेविंग इज इक्वल टू जीरो? Consumption is equal to income. वेरी गुड, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। दिस पॉइंट इज नोन एज अ ब्रेक इवन Break even point. बार बार बोलते जाओ, अपने मन में बार बार दोहराते जाओ बेटा, चैप्टर पूरा इसी के आसपास ही है। दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट का नेम क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहां y इक्वल टू c के इक्वल होगा, s इक्वल टू 0। देन हम कह सकते हैं बेटा सेविंग इज पॉजिटिव। सेविंग पॉजिटिव कब आएगी बेटा? व्हेन Income is higher than कंजम्पशन consumption. इज लेस देन इनकम और इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो इनकम का उस पार्ट को कहां खर्च कर रहे होगे? सेविंग के अंदर। क्लियर? तो दिस इज द कांसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। नाउ यस, नाउ यस, क्या बोल रहे थे बेटा चाइना? सर इसका पॉइंट का नाम पॉइंट पॉइंट का नाम क्या कह रहे हो? इस पॉइंट का नाम पी पॉइंट इक्विलिब्रियम है ना? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है बेटा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेविंग ग्रेटर देन बताई गई है। सेविंग ग्रेटर देन कई पॉइंट्स में हो सकती है, प्लस में कई पॉइंट्स में हो सकती है बेटा। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑलवेज वो होगा जहाँ पे y, जहाँ as और ad इक्वल होंगे बेटा। ओके सर। यस बेटा। सो नाउ अब हमने डायग्राम कैसे प्लॉट करना है बेटा। अभी तक जो हमने क्लास में डिस्कशन की है, क्लास में जो सीखा है टॉपिक, उसमें आई थिंक सो सिर्फ हमने एक सिंगल 2 लाइंस के बारे में हम ग्राफिकली डिस्कस कर चुके हैं बेटा। 2 लाइंस के बारे में। सबसे पहला ग्राफ जो हमने सीखा था, इट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये लाइन तो हम सीख चुके हैं बेटा बहुत अच्छे ढंग से, ये लाइन तो हमें नॉलेज है। सेकंड जो हमारी लाइन है बेटा, वो हमने अभी रिसेंटली सीखी है लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। वो टॉपिक क्या है? आपकी इनकम कर्व। इनकम कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, और ये अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम है। इनकम कर्व का ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। इनकम जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 45 डिग्री लाइन बनेगी, ऑलवेज रिप्रेजेंट एज अ 45 डिग्री लाइन। एक्स एक्सिस पे आप इनकम शो कर रहे हैं बेटा, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई एएस। सो 2 लाइंस के बारे में आप डिस्कशन कर चुके हो बेटा इस चैप्टर में, और ये 2 लाइन क्वालिटी ये है इस चैप्टर की, बेस्ट क्वालिटी ये है कि जो लाइन स्टार्टिंग से सीखी है ना, वही लाइन चैप्टर एंड तक वही लाइन चलेगी। कोई चेंज नहीं करनी, कोई मोड़नी नहीं है लाइन, कोई रोटेट नहीं करनी कुछ लाइन बेटा, सिंपल जो चल रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, यस ऑटोनोमस। इनका आपकी 45 डी लाइन है थ्रू आउट द चैप्टर। अभी क्या कॉलेज में भी थ्रू आउट द चैप्टर, कॉलेज का चैप्टर है, कॉलेज का फेवरेट चैप्टर तैयार हो रहा है आपका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का कॉलेज का चैप्टर है, 40 मार्क्स के आसपास। तो इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू 45 डिग्री की लाइन है आपके एज अ होल वाइज। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट लाइंस, जो हमने कंजम्पशन कर्व कैसे प्लॉट करना है, कंजम्पशन सप्लाई सेविंग, सॉरी कंजम्पशन सेविंग, और 2 लाइंस रह गई आई थिंक सो। कंजम्पशन सेविंग की लाइन रह गई मोस्टली बेटा इसमें। तो उन लाइंस को कैसे प्लॉट करना है, सिंगल एडी और एएस सब एक ही डायग्राम में आप कैसे प्लॉट करोगे, उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे साथ साथ आप सब बताते जाओगे। पूरे होल टेबल को हमने जो डिस्क्राइब करना है, वो होल टेबल हम जो बनाने जा रहे हैं सामने सामने, वो है
विद रिस्पेक्ट टू इनकम। होल टेबल जो आप डिस्क्राइब करोगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। सब सामने सामने मेरे सामने ग्राफ बनाते जाओ। सबसे पहले इनकम की लाइन कहां से स्टार्ट थी बेटा? 0, 50, 100, 150, 200। ऑब्वियसली इनकम को आप सब कहां दिखा रहे हैं बेटा? एक्स एक्सिस पे। जिसको जो भी डाउट हो वो हैंड रेस कर सकता है। जैसे मैं पूरा समझा दूं उसके बाद आप कोई भी डिस्कशन करना चाहें, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो बेटा। इनकम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, जिसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, इनकम स्लैश आउटपुट। सेकेंड पॉइंट, एडी एएस सब कुछ कहां दिखाओगे बेटा? वाई एक्सिस पर। तो इनकम अगर एक्स एक्सिस पे थी बेटा, इनकम हमारी थी 0, देन 50, देन 100, देन 150 एंड देन 200। साथ साथ बनाना चाहिए, सब बना सकते हैं स्टूडेंट्स बेटा। उसके बाद सी आई एस, एडी और एएस, ये ऑल लाइंस जो है वो कहां शो करोगे? वाई एक्सिस पे। तो अगर इसको वाई एक्सिस पे शो कर रहे हो तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? सब बताओ बेटा भाई। 200। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट लाइन, सेविंग की लाइन, एग्रीगेट डिमांड की लाइन और एएस की लाइन, सब कुछ कहां शो करना है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे चेक करो मैक्सिमम नंबर वाला पॉइंट कौन सा है? 200, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई वाई एक्सिस पर आती है और एग्रीगेट सप्लाई का मैक्सिमम पॉइंट 200 है, उससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। सी आई एस, एडी और एएस में होल में चेक कर लो। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे भी आप प्लॉट पॉइंट करोगे 200 तक। अगर आपके पास कॉपी होगी तो कॉपी के अकॉर्डिंग आप 10-10 का डिफरेंस दो या 20-20 का डिफरेंस दो, वो आपका डिसीजन है। मैं अभी यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस लेके ही आपको बता रहा हूँ एज अ होल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50, 100, 150, जितना नीट एंड बेस्ट बनाओगे, जितना स्पेस देके बनाओगे, उतना ही अच्छा डायग्राम बनेगा। नाउ फर्स्ट लाइन, अब ध्यान इधर बेटा, फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कौन सी? फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी? इनकम कर्व। सबसे पहले इनकम की लाइन बना दो जो 45 डिग्री होती है, जो आती है। इनकम की लाइन किससे बनती है? एएस से। इनकम लाइन किसके साथ बनेगी? एग्रीगेट सप्लाई के साथ बेटा। वाई हमारा टेबल के अकॉर्डिंग था, वाई सी आई, उसके बाद एस, एडी और एएस, ये हमारा टेबल था। पीछे टेबल चेक करते जाना साथ साथ। मैं जो लाइंस ले रहा हूं बेटा रिसेंटली, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई को के बेसिस पे एक लाइन प्लॉट कर रहा हूं। इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की, इनकम को देखो और एग्रीगेट सप्लाई को देखो। सिर्फ 2 लाइंस, नमन, सिर्फ ओनली 2 लाइंस बेटा, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बेटा। इनकम 0 पे, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 0। तो इनकम 0 पे, जो बताना चाहे मुझे बता दे साथ साथ ऑनलाइन बेसिस पे। इनकम 0 पे, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 0। इनकम 50 पे, एग्रीगेट सप्लाई 50। इनकम 100, एग्रीगेट सप्लाई 100। इनकम 150, एग्रीगेट सप्लाई 150। 200 पे 200। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बन गया, ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, 45 लाइन आपके सामने आ गई। दिस लाइन इज नोन एज अ वाई और एएस। इस लाइन का मतलब वाई और एएस। यस, अभी प्रॉपर 3 बार डायग्राम दिखाऊंगा प्रॉपर बनने के बाद भी। जिन बच्चों ने बनाया है ये डायग्राम, उसका भी डायग्राम आपको शो करूंगा कि उन्होंने कितना नीट एंड बेस्ट प्रेजेंट किया है। और आप सब जो बना ले मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हो साथ साथ बेटा। नाउ अब हम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर्व। हर लाइन को हमने किससे रिलेट करना है? इनकम से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं बेटा? इनकम। किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए सिया एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए होते हैं ना बेटा। तो एक इनकम लाइन दिखा रहे हैं, इनकम का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन, इनकम रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, इनकम रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू सेविंग, इनकम रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू एडी, इनकम रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू एएस। तो पहले इनकम और एएस की लाइन हमने सामने आ गई, तो मतलब 45 लाइन प्रेजेंट हो चुकी है। नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 20। इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द टेबल हमारे 20 चल रही है बेटा। तो 0 पे भी 20, 50 पे भी 20, 100 पे भी 20। दैट मींस वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इन्वेस्टमेंट। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई बार। इन्वेस्टमेंट इज स्ट्रेट लाइन बेटा, आई बार, सिंपल। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन बेटा प्रेजेंट। देन उसके बाद हम बना रहे हैं कंजम्पशन। 0 पे कंजम्पशन, टेबल देख के ऑनलाइन बेसिस पे सब क्लासेस स्टूडेंट जो ले रहे हैं बताते जाओ साथ साथ। कंजम्पशन 0 पे कितनी है बेटा? 0 पे कंजम्पशन 40। तो 0 पे 40, टेबल चेक करते जाओ। दिस इज द 40 का मैंने सर्कल कर दिया। देन उसके बाद 50 पे कंजम्पशन 70। तो 50 से थोड़ा सा ऊपर 70 और 100 पे 100। इसका मतलब कंजम्पशन की लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगी इस फॉर्म में। दिस वन, दिस इज द कंजम्पशन कर्व, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, ओरिजिन से अबव स्टार्ट होगी। 40 से लाइन स्टार्ट हो रही है, ब्लैक कलर से मैंने कंजम्पशन की लाइन दिखाई है। स्ट्रेट लाइन जो है ये कंजम्पशन कर्व है। साथ साथ बनाते जाओ, जो डाउट हो पूछ सकते हो उसके बाद बेटा। इनकम का कंजम्पशन से दिखा दी लाइन, इनकम की इन्वेस्टमेंट से दिखा दी बेटा हमने लाइन, इनकम की एग्रीगेट सप्लाई से भी लाइन हमने शो कर दी। सेविंग की लाइन अभी नहीं बना रहे,
बहुत हॉबी होच हो जाएगा, सेविंग का थोड़ा सा वेट कर लो। अब हम बना रहे, अभी सेविंग की लाइन थोड़े टाइम के लिए रोक देते हैं बेटा। अब हम बना रहे एडी की लाइन, सिर्फ एक ही तो लाइन रह गई, एएस तो वैसे ही बन गया इनकम के साथ। अब आ गई लाइन, लास्ट लाइन एडी, तो इनकम लाइन सर एडी के साथ एएस तो बन गया लेकिन एस का बना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, एस अभी नहीं बना रहे एस की लाइन बेटा। आयुष आपने अच्छा सुन लिया जी। बेटा, एस की लाइन सेविंग की अभी नहीं बना रहे बेटा, आगे चल के सेविंग की लाइन भी प्लॉट करेंगे, क्योंकि सेविंग स्टार्टिंग से नेगेटिव से जाएगी, उसको थोड़ा वेट कर लेते हैं बेटा। ओके आयुष? ओके सर, मुझे लगा सर एएस नहीं बनाएंगे अभी। नहीं नहीं, एएस तो बन गई, मैं कहता एएस नहीं बन चुकी है, एस नहीं बना रहे अभी। नाउ इनकम और एडी, जीरो लेवल पे एडी कितनी है बेटा? जीरो इनकम के एडी, जीरो इनकम पे एडी है आपकी कितनी? 60। लो जी 60 हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट। अब 50 पे एडी 90, 50 पे 90 दिस वन। उसके बाद 100 पे 120. 120, मतलब एडी की लाइन कुछ हद तक ये जा रही है बेटा, दिस वन। ये हो गई लाइन हमारी एडी। एडी और सी दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगी बेटा। एडी लाइन और सी लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन बनेगी आपके सामने, ठीक है। एक बार डायग्राम मैं आपको प्रॉपर शो कर रहा हूं कैसे डायग्राम बना हो सकता है बेटा इसके अकॉर्डिंग। जस्ट अ मिनट। विद नंबरिंग और विदाउट नंबरिंग। सी दिस वन बेटा, डायग्राम दिख रहा है सबको बेटा? Yes, sir. हाँ जी बेटा। सो फ्रॉम दिस डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें सब साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डायग्राम का। सबसे पहले मैं लाइन बनाई इनकम की बेटा, 0 पे 0, 50 पे 50, 100 पे 100, 150 पे 150, और 200 पे 200। इनकम लाइन इज दिस वन, फर्स्ट लाइन। देन वी रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट कर्व, वाई और आई का लिंक, 0 पे इनकम पे आई 20, 50 पे 20, 100 पे 20, 150 पे 20, 200 पे 20। कुछ ऐसे डायग्राम आपके सामने बनेगा बेटा। दिस इज द इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कर्व जो स्टार्ट है आपका बेटा, किससे कंजम्पशन कर्व स्टार्ट है? 0 पे कितना है? 40। तो कंजम्पशन कर्व 0 पे 40, 50 से थोड़ा सा नीचे, देन 50 पे कितना था? 70। पैसे चलते गए, आगे बढ़ाते गए, कंजम्पशन की लाइन बन गई सी लाइन। देन उसके बाद हमने लाइन प्लॉट की बेटा, कौन सी? देन लाइन एडी, 0 पर एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कितनी है? 60। देन 50 पे एग्रीगेट डिमांड इज 90। 90. तो कुछ हद तक इस ढंग से लाइन जाएगी बेटा, दिस वन। एडी और सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे बेटा। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई। तो ये आपके सामने डायग्राम है एडी और पूरा होल लाइंस जितने भी हमने प्लॉट किए हैं। इनकम एंड आउटपुट इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग ऑन द वाई एक्सिस। अभी तक हमने सेविंग की लाइन को प्लॉट नहीं किया है, वो नेक्स्ट डायग्राम्स के अंदर करेंगे सेविंग की लाइन प्लॉट। पूरा चैप्टर इस टेबल और डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड है बेटा। अब जिस पॉइंट पे आपका वाई और सी इक्वल है, दिस इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। एग्जाम में डायग्राम बना सकता है, एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं, उसको पूछेंगे ये कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो ये बी पॉइंट जो मैंने प्लॉट किया, ये कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट बेटा। वाई ब्रेक इवन पॉइंट? Because बिकॉज C एट is दैट equal पॉइंट to पे Y. वाई और सी हमारे क्या है, इस पॉइंट पे इक्वल है बेटा। एंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई पॉइंट से हम नहीं शो कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को आप क्यू नेम दे सकते हो या बी नेम। मोस्टली बुक में क्यू नेम दिया हो सकता है, बाकी जो भी आप नेम दो वो आपका डिसीजन है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का नेम ई ही है हमारे सामने, एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर एएस इज इक्वल टू एडी। जिस पॉइंट पे एएस और एडी इक्वल है, ई पॉइंट, एएस और एडी, एएस की लाइन 45 डिग्री, एडी की लाइन अपर स्लोपिंग, जहां दोनों मीट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर यहां तक सबको? Yes, sir. तो डायग्राम बना के जो स्टूडेंट ग्रुप में सेंड कर सकता है बेटा, मुझे फटाफट फास्ट में डायग्राम बना के ग्रुप में सेंड करो बेटा। इस चैप्टर का बेस क्लियर हो गया तो फिर चैप्टर में बिल्कुल भी देरी टाइम नहीं लगेगा बेटा। सर बहुत बड़ा चैप्टर है सर, इस चैप्टर का कोई एंड नहीं है बेटा, ये वो चैप्टर है, सर बेस्ट चैप्टर है, मतलब बड़ा चैप्टर बट बेस्ट चैप्टर। सर यस बेटा। सर ये सी वाली लाइन कैसे बनेगी? सी बेटा वाली? हमारी कंजम्पशन कर्व है लक्ष्य। कंजम्पशन का आप टेबल चेक करोगे लक्ष्य, वाई इनकम Yes, और sir. कंजम्पशन,
इनकम 0 थी, कंजम्पशन कितनी थी बेटा लक्ष्य? 40, 40, और 50 पे कितनी है कंजम्पशन? 70, 70। तो 0 पे देखो 40, ये रहा, मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद 50 पे 70 दिस पॉइंट। उसके बाद 100 पे कितनी थी? 100 पे कितना है? 100 दिस पॉइंट। तो ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी बेटा। सबको इनकम से रिलेट करना है, हर लाइन को बेटा आपने इनकम से रिलेट करना है। एक्स एक्सिस पे इनकम दिखा रहे हो, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ बेटा। ठीक है, ओके सर। और भी कोई डाउट हो किसी को तो साथ साथ पूछते जाओ बेटा। अभी कोई भी किसी को डाउट है, कोई लाइन नहीं बन रही सामने सामने, तो प्लीज बताओ बेटा। एनी स्टूडेंट बेटा? सी और एडी की लाइन ऑलवेज पैरेलल होगी बेटा। एडी और सी इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही जाएगा, व्हाई एरिगेट डिमांड एंड कंजम्पशन कर्व इज पैरेलल टू ईच अदर। आप नंबरिंग वाइज बनाओ एग्जाम में, विदाउट नंबरिंग वो आपका डिसीजन होगा, पर लाइन पैरेलल आनी चाहिए, ये बोर्ड का डिसीजन है बेटा। ये मेन है बेटा। ये लाइन पहले नहीं आई तो समझ लो रॉन्ग, क्वेश्चन ही रॉन्ग है बेटा। तो सी और एडी दोनों पैरेलल बननी चाहिए बेटा। ये टेबल जो डायग्राम मैंने दिखा दिया, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको शो करूं, ये टेबल डायग्राम ग्रुप में सेंड कर दो बेटा, जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ प्रॉपर। साहिल आप भी कर दो।